Welcome to Math Infinity. I am Shuchi Goyal. I have designed this art integrated math project for students of classes 8 to 10. So let us understand, what does art integrated education mean? Art integrated education means inclusion of any art form in the main subjects of learning, be it languages or science or mathematics or social sciences. So if we include any art form, visual or performing, in teaching of any concept in the main subject, then we call it as art integrated education. For example, we can integrate theatre for teaching languages, music and dance for teaching social sciences, and painting for teaching mathematics. These are just example. Actually, you can integrate any art form to teach any subject. And why do we do it? Because it makes the subject connected with real life. Child enjoys doing म्यूज़िक, डांस, पेंटिंग, बच्चों को तो सब कुछ बहुत अच्छा लगता है. तो अगर बच्चे म्यूज़िक, डांस या पेंटिंग के थ्रू कोई कॉन्सेप्ट याद करते हैं, कोई कॉन्सेप्ट को समझते हैं, तो वो उन्हें हमेशा के लिए याद हो जाता है. दे डोंट हैव टू क्रैम इट. तो ये क्रैमिंग को रिड्यूस करता है. दैट्स वाई CBSE हैड इंट्रोड्यूस्ड आर्ट इंटीग्रेशन इन टीचिंग ऑफ मेन सब्जेक्ट्स on the recommendation of NCF 2005. I have taken this painting project connected with topics of mathematics, area and perimeter, ratio and proportion, and how to enlarge a figure using graph paper. And I have integrated teaching of Bhagavad Gita to mathematics or to my subject. Look at this painting. This is a Madhubani painting. I have downloaded it from printers.com. You can see many geometric patterns in this painting. There are circles, there are squares, there are triangles, there are so many lines of symmetry, and then you can also make use of topics area, perimeter, area of shaded region, unshaded region, ratio and proportion, circumscribing circles, in circles. So you have many topics related to this painting. तो अपनी इमेजिनेशन के पंख फैलाओ और डिज़ाइन करो. जितने चाहे क्वेश्चंस मैथमेटिक्स के इस पेंटिंग पर डिज़ाइन कर सकते हो. तो यू कैन चूज़ एनी पेंटिंग एंड देन यू कैन डिज़ाइन एज मेनी क्वेश्चंस इन मैथमेटिक्स. मैंने एक पेंटिंग घर पर बनाई थी. आई हैड अ ब्लैक कैनवस एट होम एंड उसका साइज़ था 4 फीट बाय 3 फीट. तो मैंने एक मधुबनी पेंटिंग बनाने का सोचा. मधुबनी पेंटिंग का एक बहुत ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देती हूँ. मधुबनी पेंटिंग इज़ द स्टाइल ऑफ इंडियन पेंटिंग एंड नेम्ड आफ्टर मधुबनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार. इट इज़ करेक्टराइज्ड बाय इट्स आई कैचिंग ज्योमेट्रिक पैटर्न्स. ये जितनी भी पेंटिंग्स हैं मधुबनी पेंटिंग्स, ये इनमें ज्योमेट्रिक पैटर्न होता है. और ये सब गांव में औरतें अपने घर की दीवारों को सजाने के लिए बनाती हैं. और वो ज़्यादातर चावल को पीस कर और उसके पाउडर से बनाते हैं. यहाँ पर हमने कैनवस पर बनाया है एंड एक्रेलिक कलर्स को यूज़ कर कर बनाया है. ये कुछ पेंटिंग्स हैं जैसे दिखाई देगा. तो इनमें पीकॉक पेंटिंग्स हैं, फिश पेंटिंग्स हैं. ये सब नेचर से रिलेटेड हैं बिकॉज गांव में औरतें बनाती हैं, तो नेचर से रिलेटेड पेंटिंग्स हैं. और राधा कृष्ण की बहुत सारी पेंटिंग्स मिलेंगी मधुबनी पेंटिंग में. सो आई डिसाइडेड टू मेक दिस पेंटिंग. Why did I decide to make this painting? Because I wanted a landscape view. And then मधुबनी पेंटिंग मुझे पसंद तो है ही, और इसमें शेडिंग नहीं होती है, सॉलिड कलर्स यूज़ होते हैं. और रेशो ऑफ साइड्स ऑफ दिस पेंटिंग ऑन माई फोन स्क्रीन वॉज एग्जैक्टली सेम एज द रेशो ऑफ साइड्स ऑफ माई कैनवस. तो सेम रेशो था, एग्जैक्ट मैच था. पेंटिंग भी बहुत सुंदर है. जिसने भी बनाई है, थैंक यू सो मच. तो मैंने pinterest.com से ही डाउनलोड करा था इस पेंटिंग को भी, और आई डिसाइडेड टू हैव दिस पेंटिंग. व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट रेशो एंड प्रपोर्शन, सो इन दिस painting, when I downloaded it on my phone screen, the dimensions are 2.8 by 2.1 inches.
These were the dimensions on my phone screen. So if I find the ratio, that is L by B, it is 4 by 3, and in decimals it is 1.33. My canvas, it was of dimensions 48 inches by 36 inches. Again, ratio length to breadth is 4 by 3, and in decimal it is 1.33. So this is exact match. Then I wanted to make some border. So excluding border, the dimensions are 44 inches by 32 inches, and that comes out 1.38. अब फ़ोन स्क्रीन से इतने बड़े कैनवस पर पेंटिंग बनाना पॉसिबल नहीं था मेरे लिए, हमेशा स्क्रीन को देखना पड़ता. सो आई हैड टू टेक अ प्रिंट आउट. अब प्रिंट आउट निकालने के लिए हमारे पास या तो A4 साइज़ पेपर होता है जिसकी डायमेंशंस होती हैं 11.7 बाय 8.3 इंचेस, और इसकी भी लेंथ इज टू ब्रेथ रेशो 1.41 होती है, या फिर A3 साइज पेपर जो कि इससे बड़ा होगा और इसकी डायमेंशन 16.5 बाय 11.7 इंचेस होती है, एंड इफ़ यू सी द रेशो इज ऑल्सो अगेन 1.41. So I thought to take a printout on A3 size paper because these two were approximately 1.4 inch. So it was matching that. So I took a A3 size paper and then I enlarged the painting to my canvas that was 44 inches by 32 inches. टू एनलार्ज एनी पेंटिंग, जैसे आप लोग करते हो, आप जूम इन करते हो जब भी कोई भी आप फ़ोटो देखते हो अपने फ़ोन पर, लैपटॉप पर, तो हम कैसे जूम इन करते हैं? हम जब जूम इन करते हैं तो हम कॉर्नर से जूम इन करते हैं. क्यों करते हैं कॉर्नर से? बिकॉज अगर हम कॉर्नर से जूम इन करते हैं तो उसकी लेंथ और ब्रेथ की रेशो सेम रहती है, और आपके जो ये आपने जो भी फिगर ली है उस वो फिगर डिस्टॉर्ट नहीं होती. आप देखो, मैंने इसीलिए सर्कल की फिगर ली थी, तो सर्कल्स की फिगर में सर्कल की शेप खराब नहीं हुई. हम इसको कॉर्नर से जितना भी चाहे जूम इन करें, शेप रिमेन सेम. बट अगर हम इसको सर्कल की शेप देखो आप ध्यान से, अगर हम इसे कॉर्नर से ना लेकर वी चेंज ओनली लेंथ नॉट ब्रेथ, तो शेप गेट्स चेंज्ड. सिमिलरली if I change only breadth but not length, again shape is changed. So it is important that for any figure when we enlarge it, we change the length and breadth both so that the ratio length is to breadth remain same. Similarly in this picture or in this painting, if I had changed only length, तो मेरी पेंटिंग अच्छी नहीं बनती ना. सिमिलरली इफ़ आई हैड चेंज्ड ओनली ब्रेथ, तो भी मेरी पेंटिंग सुंदर नहीं बनती. तो मुझे इसे एनलार्ज करना था, लेकिन रेशो को सेम रखना था. L is to B, that had to be remain same. जब रेशो एंड प्रपोर्शन पढ़ते हैं हम, क्लास 8 में भी बच्चों ने पढ़ा है कि जब रेशो एंड प्रपोर्शन मीन्स लाइक 16 by 20 is same as 4 by 5 is same as 8 by 10, it is same as 40 by 50. So we say that these are in proportion. ये जितने भी ratios हैं they are in proportion. So I had to convert 16.5 to 44 inches and 11.7 to 32 inches. But in both the cases the ratio L upon B, it was same, that is 1.4, or you can say 7 by 5. So I thought let me enlarge it. अब enlarge कैसे किया जाए? तो enlarge करने के लिए I used graph paper. कुछ फ्री हैंड स्केचिंग था और कुछ मैंने ग्राफ पेपर को यूज़ किया. ग्राफ पेपर को कैसे यूज़ करते हैं? This is not my work, I have downloaded from this website. So this is the graph paper where small squares you can see, and this is the grid, and same picture has been enlarged making a bigger grid. So this is called enlargement using
graph paper. So I enlarged this picture and I made the painting. Now you can see my painting. This is my painting. I made some changes. I made some concentric circles over here. You can see these are the circles. I have added these circles just to give aura to Bhagwan Krishna, and there are some color combination. Color combination is basically काफ़ी change हो गया है. So this is a similar painting, not the same, but I think it is beautiful. I love it. ये भगवान कृष्ण का बाल रूप है, जिसमें भगवान कृष्ण अपने बाल सखाओं के साथ बैठकर बांसुरी बजा रहे हैं. भगवान कृष्ण तो खड़े हैं और बाकी सब उनकी बांसुरी का आनंद ले रहे हैं. भगवान कृष्ण, जैसा आप सबको पता है कि जब महाभारत का युद्ध हुआ था, भगवान कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में गीता का संदेश दिया था. उस गीता के संदेश में से मुझे एक श्लोक बहुत अच्छा लगता है, दैट इज़ कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन. मैंने सब स्टूडेंट्स के लिए उसको इंटरप्रेट किया है कि यू योरसेल्फ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर एक्शंस. इफ़ यू मेक एनी मिस्टेक you will lose marks. So practice more to reduce number of mistakes and then stop worrying about marks. You will definitely achieve more. Means आप पढ़ाई करो, मेहनत करो, बहुत प्रैक्टिस करो, लेकिन ये सोच कर नहीं कि मुझे 80% लेना है, मुझे 90% लेना है. आप पढ़ाई करो, अपना कर्म पूरा करो, अपने अच्छे से जितनी मेहनत कर सकते हो, जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी प्रैक्टिस करो. उसके बाद तुम्हें मार्क्स को सोचने की ज़रूरत नहीं है, मार्क्स अपने आप आ जाएंगे. उसके लिए तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है. तो पहले से अपने दिमाग में टेंशन्स मत पालो कि मुझे तो 95% लेना है या 97% लेना है. अपना 100% दो अपनी मेहनत पर. उसके बाद जितने भी मार्क्स आए उसके लिए तुम्हें चिंता करने के लिए ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यू हैव गिवन योर बेस्ट. सो गिव योर बेस्ट. एंड विद दिस थॉट, थैंक यू सो मच. इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन तो मुझे बताओ कि कैसी लगी. थैंक यू.